محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. MLC انتخابات میں TRS امیدواروں کی جیت یقینی. مختلف فلاحی تنظیموں کے قائدین کی MLC کویتا سے ملاقات و تائید کا کیا اعلان. رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی قیادت میں شہر ترقی کی راہ پر گامزن. شہر کی تاریخ میں پہلی بار احمدی بازار میں حکومت کے بجٹ سے 200 ملگیوں پر مشتمل کمرشل کمپلیکس کا قیام کا منصوبہ. کاموں کا ہوگا عنقریب افتتاح. ناگرام میں لینڈ مافیا کا خاتمہ کرتے ہوئے غریب عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے. وہ احمدی بازار کی تاجرین کے مسائل کے حل کے لیے MP اروند کی ضلع کلکٹر نارائن ریڈی سے ملاقات. ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں تلنگانہ ملک کا نمبر 1 اسٹیٹ. MLC انتخابات کے مد نظر منعقدہ اجلاس سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا خطاب. نظام کالونی کثیر رہائشی علاقے سے گزرنے والے سڑک پر بڑے گاڑیوں کی پارکنگ و بسز کی آمد و رفت کے سبب ایک معصوم ہوا حادثے سے دوچار. عوام برہم. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. راشٹریہ اپادھیائے پنڈت پریشد SLTA کی جانب سے MLC انتخابات میں TRS کی حمایت کا اعلان. یونین نمائندوں کی رکن کونسل کویتا سے ملاقات. تائیدی مکتوب حوالے. راشٹریہ اپادھیائے پنڈت پریشد اور SLTA یونین کے نمائندوں نے آج رکن قانون ساز کونسل کلوکنٹلا کویتا سے حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے گریجویٹ MLC انتخابات میں TRS امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا اور اس ضمن میں رکن کونسل کو ایک تائیدی مکتوب بھی حوالے کیا. تقریباً 50 افراد پر مشتمل اس وفد نے رکن کونسل کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے ان کو درپیش مسائل اور افکار سے واقف کروایا اور ان کی عاجلانہ یکسوئی کی گزارش کی، جس پر رکن کونسل نے مثبت رد عمل ظاہر کیا اور یکسوئی کا تیقن دیا. پنڈت پریشد اور یونین کے نمائندوں نے TRS حکومت کی جانب سے حالیہ عرصے میں جاری GO 2 اور 3 کی اجرائی پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ گریجویٹ MLC انتخابات میں دونوں سیٹوں پر TRS امیدوار وانی دیوی اور راجیشور ریڈی کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. رکن کونسل سے ملاقات کرنے والے وفد میں راشٹریہ اپادھیائے پنڈت پریشد کے محمد عبداللہ، جنرل سیکرٹری تروملا کرانتی کرشنا، SLTA صدر چکرورتا سرینیواس، جنرل سیکرٹری گوری شنکر کے علاوہ دیگر شامل تھے. ریاست تلنگانہ میں 2 MLC نشستوں کے لیے 14 مارچ کو انتخابات منعقد شدنی ہے، جس کے لیے انتخابی کمیشن نے 16 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. ان دونوں نشستوں کے لیے نتائج کا اعلان 17 مارچ کو ہوگا. نظام آباد رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی قیادت میں شہر ترقی کی راہ پر گامزن. 5 کروڑ کی لاگت سے اقلیتی علاقے میں موجود احمدی بازار کے بکرا مارکیٹ میں 200 ملگیوں پر مشتمل کمرشل کمپلیکس کی تعمیری کا منصوبہ. آن لائن ٹینڈر کے ذریعے کی جائیں گی ملگیوں کی تقسیم. عنقریب ہوگا کام کا آغاز. نئے دور کی شروعات. نظام آباد کے احمدی بازار میں واقع بکرا مارکیٹ جو نظام دارالحکومت میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ شہر کے اہم بازار میں موجود ہونے کے سبب اس وسیع اراضی کا اچھا استعمال کرنے کی غرض سے رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا اس اراضی پر 200 ملگیوں پر مشتمل کمرشل کمپلیکس تیار کرنے کا اعلان کیا اور اس کے لیے 5 کروڑ روپے فنڈ مختص کیا اور تمام قبضے داروں کو خالی کرنے کی نوٹس بھی جاری کی. اور کل اس نوٹس کا آخری دن ہے. واضح رہے کہ اس کمپلیکس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اقلیتی علاقے کے اس بازار کی رونق دوبالا ہو جائے گی اور ان ملگیوں کو ٹینڈر آن لائن کے ذریعے الاٹ کیا جائے گا، جس سے ہر ایک کو ملگی کے حصول کے لیے مساوی موقع ملے گا. اس طرح کا یہ پہلا کمرشل کمپلیکس ہوگا جو اتنے بڑے پیمانے پر تعمیر ہوگا.
निजाम कॉलोनी की रिहायशी इलाके से गुजरने वाली सड़क से अचानक बड़े गाड़ियों की आमोदरफ्त व पार्किंग में इजाफा, जिसके सबब निजाम कॉलोनी का रहने वाला 12 साल बच्चा मोहम्मद बिलाल का बस के जरिए हुआ हादसे में मासूम व शदीद जख्मी, अवाम बरहम। निजामाबाद के इलाके निजाम कॉलोनी, जहां पर रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एक रोड गुजरती है और इन दिनों इस रास्ते से काफी तादाद में आरटीसी बस, बड़े गाड़ियां गुजर रहे हैं, जिसके सबब आए दिन इस सड़क पर हादसात हो रहे हैं, जिस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसकी मिसाल ये है कि आज इस सड़क के आसपास बड़े बड़े लॉरीज पार्क किए गए थे, जिसके सबब यहाँ पर से गुजरने वाले एक 12 साल लड़के मोहम्मद बिलाल, वालिद का नाम मोहम्मद गौस, को महाराष्ट्र बस डिपो की बस ने तेज रफ्तार के साथ यहाँ से गुजर रही थी। इसकी जद में ये मासूम आ गया और शदीद हलाक हो गया, जिसके बाद मुकामी अफराद की जानिब से इस बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। इस मौके पर इस मासूम के अफराद खानदान व मुकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सड़क पर से बड़े गाड़ियों के गुजरने पर इम्तना आयद करे और लॉरी की पार्किंग को खत्म करे। कौमी तमानियत रोजगार स्कीम मजदूरों को 237 रुपये अदा करने की हिदायत। जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने कौमी तमानियत रोजगार स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों को 237 रुपये की उजरत फराहम करने के अहदेदारों को हिदायत दी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज जिले के नरसिंहपल्ली, मदकपल्ली, मोपाल देहातों में तमानियत रोजगार स्कीम के तहत पौधों की अफजाइश करने वाले नर्सरियों का मुआयना किया और इस मौके पर अहदेदारों से बातचीत की और कहा कि हर मजदूर को 237 रुपयों की उजरत फराहम करे और हर रोज 1000 अफराद को रोजगार फराहम करे। मोपाल के तालाब में मिट्टी की निकासी कामों का जायजा लिया और मजदूरों से बातचीत करते हुए काम के बारे में दरियाफ्त किया और मजदूरों से कहा कि सुबह के अव्वलिन वक्त में काम शुरू करें और वक्त में इजाफा भी किया जाएगा। मार्च के अख्ताम तक 100 दिन मुकम्मल होने के बाद मजीद 100 दिन का काम फराहम किया जाएगा। मौसम गर्मा के पेश नजर 15 दिन में मजदूरों के लिए जिस मुकाम पर काम किया जा रहा है वहाँ पर शामियाने की भी सहूलत फराहम की जाएगी। जिला कलेक्टर ने नर्सरियों में पौधों की अफजाइश के बारे में तफसीली तौर पर बातचीत की। इस मौके पर DRDO श्रीनिवास के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఎక్కడైనా సరే గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ కూడా ప్రైవేట్ ఏదైతే ఉంటుందో గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఎంత పని చేస్తే అంత కూడా అంతే. అయితే ప్రైవేట్ ఏంటంటే ఓ రైతు దగ్గర పోతాం, రైతు అడుగుతాడు అంత, నాకు ఇంత పని చేయి నువ్వు చెప్తుంది ఇస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్నకు పోతారు, ఒక ఎకరకు నాటేయాలంటే ఓకే 3000 ఇస్తా 4000 ఇస్తా మాట్లాడతారు. ఆయన रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन की निगरानी में शिल्पा कला वेदिका में 2 यौम से जारी 53वें सालाना इजलास का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन की निगरानी में शिल्पा कला वेदिका में 2 यौम से जारी 53वें सालाना इजलास का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि इस इजलास में शिरकत के लिए मुल्क के तमाम रियासतों से आने वाले अवामी नुमाइंदों को रियासत तेलंगाना की जानिब से खुश आमदीद कहते हुए बताया कि इंसान को साफ सफाई व ताज़ी हवा के साथ मुतवाजन ग़िज़ा भी निहायत जरूरी होने का इजहार करते हुए कहा कि बारिश के जरिए हासिल होने वाले पानी के ज़ख़ीरे को फिल्टर करने के लिए रियासत तेलंगाना हुकूमत ने 40,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से मिशन भगीरथा के तहत पानी को फिल्टर बनाकर रियासत तेलंगाना में मुकीम तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली अवाम को साफ पीने का पानी फराहम किए जाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ हैदराबाद के IAS MD दाना केशर, इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर M सत्यनारायण कोंडा रेड्डी व दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने TRS MLC उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में मुनक़िद करदा इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके हल्के ग्रेजुएट अवाम से तायद फराहम करके कामयाब बनाने की अपील की। महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट MLC इंतखाबी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए मुकामी रुकन असम्बली अंजया यादव की निगरानी में मुनक़िद करदा TRS MLC उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की इंतखाबी मुहिम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी, रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी, MP श्रीनिवास रेड्डी व दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इंतखाबी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए
बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना को अव्वलीन मुकाम हासिल होने पर अपोजिशन कायदीन को TRS की तरक्की हजम नहीं हो रही, इसीलिए वो बुनियादी बातों और बेबुनियाद इल्जामात आयद करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवाम बाशऊर है, क्योंकि अवाम ने तरक्की को महसूस करके मुख्तलिफ तरक्याती फलाई स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करके रियासती वज़ीर आला KCR की बेहतरीन कारकर्दगी से खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर्ब मुखालिफ के झूठे बातों में न आए। तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम में तेलंगाना हुकूमत ने 6 सालों में 1,32,000 मुलाजिमतें फ्राहम की है, जबकि BJP की रियासती हुकूमत उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में तेलंगाना से ज्यादा अगर मुलाजिमत फ्राहम की हो और तनख्वाहों का तनासुब तेलंगाना मुलाजमीन से ज्यादा हो तो आप वोट हासिल कर सकते हैं। आज़मीन हज के लिए अहम इत्तला, हज के लिए कोरोना वैक्सीन लेना जरूरी। जारिया साल फरीजा हज की अदायगी के लिए कोविड-19 वैक्सीन को लाजमी करार दिया है। सऊदी अरब ने कहा कि इस साल फरीजा हज अदा करने की इजाज़त सिर्फ इन अफराद को होगी जिन्होंने कोरोना से महफूज रहने का टीका लगवाया है। सऊदी वज़ीरात सेहत के मुताबिक आज़मीन हज के लिए इस साल की ये लाजमी शर्त होगी। वज़ीरात सेहत के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन हाजियों के लिए लाजमी है और ये इस साल हज की इजाज़त मिलने के ज़िमन में सबसे अहम शर्त होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिश के तहत सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने 20 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के लिए हुकूमत ने जारी किए 17 करोड़। तेलंगाना हुकूमत ने जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के लिए आज मजीद 17 करोड़ 50 लाख की रकम जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज वजीर बल्दी नज़्म तारक रामा राव ने तेलंगाना मीडिया अकादमी के चेयरमैन अलम नारायण और सहाफ़ियों के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए सहाफ़ियों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की थी और आज हुकूमत ने रकम जारी कर दी। रियासत के सहाफ़ियों की बहबूद के लिए हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड से जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड शुरू किया था, जिसमें अब तक 34 करोड़ 50 लाख दिए गए और आज की रकम के साथ जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड में 52 करोड़ 50 लाख हो गए हैं। जिले CEO गोविंद ने जिले निजामाबाद बालकोंडा अलकसमली पर वाक़े मोरताड़ देहात में मुनक़िद करदा तरक्याती कामों का अचानक लिया जायजा। जिले निजामाबाद CEO गोविंद ने आज बालकोंडा अलकसमली मंडल के मुकाम पर वाक़े मोरताड़ देहात में मुनक़िद करदा तरक्याती कामों का अचानक मुशाहिदा करके जायजा लेने के अलावा पहले प्रकृति जंगलात और जिम वो ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत लगाए गए पौधों नर्सरी का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए नर्सरी के तहत लगाए गए पौधों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और नर्सरी के पौधों के खुश्क होने इसकी जगह पर दूसरे पौधे लगाने की हिदायत देते हुए बताया कि नर्सरी में अवाम के लिए फायदा बख्श पौधों की अफजाइश करके अवाम को राहत पहुंचाने के लिए कहते हुए पहले प्रकृति जंगलात या ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत नर्सरी में लगाए गए पौधों को रोजाना पानी की सरबराही करके पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार करते हुए कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज पहले प्रकृति जंगलात के तहत नर्सरी में पौधों की अफजाइश दिलचस्पी लेते हुए कामयाब मनसूबाबंदी करने वाले सरपंच भोगा धरनी व दीगर अवामी नुमाइंदों की खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इनके साथ MPDO श्रीनिवास रेड्डी, मंडल पंचायत ओहदेदार श्रीधर, APO शकुंतला, EGS EC सेक्रेटरी रमा कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद बालकोंडा अलखे मोरताड़ मंडल में वाक़े गांडलापेट देहात में मुकामी सरपंच की निगरानी में मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों के हाथों तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद बालकोंडा अलखसमली मोरताड़ मंडल में वाक़े गांडलापेट देहात में मुकामी सरपंच मामड़ी सुवजनिया सुमन की निगरानी में MPP शिवलिंगु श्रीनिवास, मंडल TRS पार्टी सदर कलेड़ा एलैया, MPDC देवती अशोक ने CC रोड तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देकर तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि रियासती वजीर इमारत शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब मौजे की तरक्की के लिए फिलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तामीरी कामों को तेजी के साथ शुरू करके जल्द पाए तकमील तक पहुंचाते हुए तरक्की की जानिब गामजान करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच मामड़ी ममता, वार्ड मेंबरान TRS कायदीन महेंद्र, सुरेश, सेक्रेटरी अजय, दही तरक्की कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की साइकिल रैली, कारकुनान, कायदीन और अवाम से रैली को कामयाब बनाने की अपील। ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 मार्च के रोज निजामाबाद में एक साइकिल रैली निकाली जा रही है। इन ख्यालात का इजहार जिले कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान,
रूरल हल्के के इंचार्ज भूपत रेड्डी के अलावा कांग्रेसी कायदीन अबेद बिन हमदान व दीगर कांग्रेसी कायदीन सहाफियों से बातचीत करते हुए किया। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आकर 7 साल वे इन 7 सालों में मुतवस्सित व गरीब तबके पर जबरदस्त बोझ आयद किया जा रहा है। 2014 से 2021 तक मरकजी हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस आयद किया जा रहा है, इससे अवाम को माशी तौर पर बहरानियों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सों में इजाफा और दूसरी तरफ सब्सिडियों को कम किया जा रहा है। हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमत 100 तक किया गया और नरेंद्र मोदी की नाकामी का खुला सबूत है। बीजेपी कायदीन मुल्क के लिए और मजहब के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से गाड़ी मालिकीन को नहीं बल्कि हर शख्स को इसका असर पड़ेगा और जरूरी अशिया की कीमतों में जबरदस्त बोझ आयद होगा। कांग्रेस की हुकूमत में सब्सिडी दी जा रही थी, आज गैस पर 45 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि इजाफा शुदा कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से 6 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन से एक रैली निकाली जा रही है। इसमें कारकुनान कायदीन अवाम शिरकत करते हुए रैली को कामयाब बनाने की अपील की। పరిస్థితిని ప్రజలు గమనించాలి। ప్రజల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను తగ్గించేంత వరకు పోరాటం చేయడానికి సిద్ధమైంది। రేపు శనివారం రోజున నిజామాబాద్ పట్టణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున నిరసన ర్యాలీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం। हिंदुस्तान में कोविड से 15 लाख स्कूल बंद, 247 मिलियन बच्चे तालीम से महरूम। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस वबा और लॉकडाउन की वजह से 1.5 मिलियन स्कूल बंद हो गए और इससे 247 मिलियन बच्चों पर असर पड़ा जो बुनियादी और सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ रहे थे। दुनिया के दीगर मुकामात पर 168 मिलियन से ज्यादा बच्चों के स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऑनलाइन तालीम इसका बदल नहीं है, क्योंकि 4 में से सिर्फ 1 बच्चे को ही डिजिटल आलात और इंटरनेट तक रसाई हासिल है। कोविड से पहले हिंदुस्तान में सिर्फ 1/3 घर 24% इंटरनेट तक रसाई रखते थे और इस हवाले से बड़े पैमाने पर शहरी दही और सनफी तकसीम पाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान में जहां वबा की वजह से 1.5 मिलियन स्कूल बंद हो गए और 247 मिलियन बच्चे मुतासिर हुए, वहीं 6 मिलियन से ज्यादा बच्चे और बच्चियां कोविड-19 बहरान शुरू होने से कबल स्कूलों से निकल चुके थे। इदारे ने कहा कि हिंदुस्तान में अब तक सिर्फ 8 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में अव्वल से 12वीं जमात तक क्लासेस खोली है, जबकि 11 रियासतों में 6ठी से 12वीं और 15 रियासतों में 9वीं से 12वीं जमातें खोली है। 3 रियासतों में आंगनवाड़ी मराकज दोबारा खोले हैं और इन हालात की वजह से छोटे बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हो रहे हैं। यूनिविजिट इंडिया की नुमाइंदा डॉक्टर यास्मीन अली हक ने बताया कि वबा शुरू होने के बाद से तकरीबन 1 साल हो चुका है जब स्कूल बंद कर दिए गए और पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के मामला दरहम बरहम हो गए। जिले कामारेड्डी जुक्का रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़े ज़राई मार्केट यार्ड में मार्केट कमेटी चेयरमैन मरहूम सुधाकर राव की ताज़ियती तकरीब में शिरकत कर इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाकर खराज अक़ीदत पेश की। जिले कामारेड्डी जुक्का रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने पिटलम मंडल के मुकाम पर वाक़े ज़राई मार्केट यार्ड में मार्केट कमेटी चेयरमैन मरहूम सुधाकर राव की ताज़ियती तकरीब में शिरकत करके इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश करके इनकी जानिब से फ़राहम करदा खिदमात की सताइश की ताज़ियती तकरीब में 6 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले MPP, ZPTC, मंडल TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। 70 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ జీవితాన్ని గడిపి ఈ సమాజానికి మనిషి బతికున్నప్పుడు ఏం చేయగలడో చేస్తూ చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలని ఈ సమాజానికి ఒక ఆదర్శాన్ని నిలిపినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మన సుధాకర్ రావు గారు. తన డెడ్ బాడీని ఒక మెడికల్ కాలేజీకి డొనేట్ చేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. చనిపోయిన తర్వాత ఈ శరీరం గురించి మనకి ఏమీ తెలియదు, అయినప్పటికీ टैक्स बखराजात पर आयद जुर्माना 90% माफ। डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर एन सत्यनारायण ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 207 का हवाला देते हुए तेलंगाना रियासत के तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी कि वो जायदाद टैक्स के बखराजात में जुर्माने की रकम सिर्फ 10% की वसूल करे। अवाम इस मौके से इस्तेफादा करते हुए बखराजात की अदायगी के लिए आयद करदा जुर्माने की रकम से राहत हासिल कर सकते हैं।
एक खास सकाफती रुआयत की तरफ झुकाव तकसीरी मुआशरे के लिए नुकसान दह है। SIO मोहम्मद फराज अहमद रियासती मीडिया सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शर्मनाक बात है कि एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क भर में अवामी तालीमी निज़ाम तबाह हो रहा है और तुलबा तालीम में पीछे होते जा रहे हैं, हुकूमत निसाब को जाफरानी रंग देने के अपने एजेंडे में मसरूफ है। इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS में वेद, योगा, संस्कृत, रामायण और भगवद गीता समेत 15 कोर्सेज भारतीय ज्ञान पर मेरा के नाम से मुतारफ किए गए हैं। ये हिंदुस्तानी अदब और तारीख के एक रुखी नजरिए की तरफदारी करता है, जारी से गफलत बरत रही है, जैसा कि इस साल के तालीमी बजट में भारी कटौती से जाहिर होता है। स्कूल और वालिदैन दोनों ही कोविड-19 के बहरान की वजह से बच्चों को सीखने के मौके की फराहमी के लिए जद्दोजहद करें, लिहाजा हुकूमत को निसाब में बेजा मदाखलत के बजाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तालीमी इमदाद फराहम करने को तरजीह देनी चाहिए। मरकजी हुकूमत के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए एक नया रिवाइज्ड करिकुलम तैयार किया है, जिसमें भारतीय जनन परंपरा के नाम से 15 कोर्सेज शामिल किए गए हैं। इसका मकसद इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करना है। इन 15 कोर्सेज में जो मज़ामीन शामिल है वो उसमें योगा है, वैद रामायण है, भगवद गीता, ऐसे मज़ामीन शामिल है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेस में गाय की देखभाल और गौशालाओं की साफ़ सफाई और देखभाल के तरीक़ेकार वगैरह इस किस्म के ये कोर्सेज जो है इन्होंने शामिल किए हैं। तो इस एजुकेशन न्यू करिकुलम में इनका जो मकसद है वो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो इंडियन कल्चर है उसका नॉलेज, उसको जो है प्रमोट करना इनका मकसद है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इन्होंने लास्ट ईयर लाई थी उसमें भी उन्होंने यही मकसद बताया। बरतानवी पार्लियामेंट में पीर को किसान एहतजाज पर बहस, ई पिटीशन पर 1 लाख दस्तखत, हिंदुस्तान से एहतजाजियों की सलामती और आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट पीर को हिंदुस्तान में एहतजाजियों की हिफाजत और सलामती और आज़ादी सहाफ़त के मसले पर बहस करेंगे। ये बहस एक ई पिटीशन के जवाब में होगी जिस पर 1 लाख से ज़ायद दस्तखत हो चुके हैं, जो इस तरह की बहस के लिए एक पेज की शर्त है। दारुल अवाम की पिटीशंस कमेटी ने ये चारशंबे को ये बात बताई। 90 मिनट की ये बहस लंदन में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में होगी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और पिटीशन कमेटी के रुकन मार्टिन डे बहस का आगाज करेंगे और हुकूमत बरतानिया की जानिब से एक वजीर को जवाब देने के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस बहस का ताल्लुक इस पिटीशन से है जिसमें हुकूमत हिंद से कहा गया है कि वो एहतजाजियों की सलामती और आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाए। पिटीशन में हुकूमत बरतानिया से कहा गया कि वो किसानों के एहतजाज और सहाफ़त की आज़ादी के बारे में एक बयान जारी करे। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात। नगराम के इलाके में गैर कानूनी कब्जाजात के मसले को हल करने पर अहमदी बाजार के ताजिर ने मसाइल के हल के लिए की जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने जिला कलेक्टर दफ्तर में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और मीडिया के साथ तबादला ख्याल करते हुए बताया कि नगराम से ताल्लुक़ रखने वाले क़ुरबा में दिए गए पट्टाजात की मुकम्मल तौर पर तहक़ीक़ात करने के साथ इसी मुकाम पर सहाफ़ियों को भी प्लाट देते हुए वहां पर डबल अलाटमेंट करने पर मुश्किल तरीन हालात का सामना करने का इजहार करते हुए कहा, बगैर तनाज़े के ग़ुरबा व जर्नलिस्ट को फौरी तौर पर नए पट्टाजात की फ़राहमी अमल में लाने के पेश नज़र सख्ती के साथ तहक़ीक़ात करने की हिदायत देने पर कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने दिलचस्पी लेते हुए 45 यौम में इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया और इसी तरह से अहमदी बाजार में वाक़ जदीद तौर पर तामीर होने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मुतालिक़ा तबादले ख्याल। పేదలకి ఇచ్చిన ప్లాట్లు 2005లో కానీ 2014లో కానీ గుమాస్తా సంఘం, దడవాయి సంఘం, రాజీవ్ గృహకల్ప, భారతీరాణి కాలనీ, టైలర్స్ కాలనీ, ఇటువంటి కాలనీస్ అన్నీ కూడా సందర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ 2005లో ఇచ్చిన ప్లాట్లే మళ్ళా జర్నలిస్ట్ మిత్రులకి మళ్ళీ అదే ప్లాట్లు మళ్ళీ అలాట్ చేస్తున్నారు. జర్నలిస్టులకి పెద్ద చెవుల పువ్వు పెట్టారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు. ఆల్రెడీ గరీబ్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్లాట్లు మళ్ళీ మీకే ఇస్తున్నారు. మీరు ఆడిపోతే వాళ్ళతో మీకు పంచాయతీ, మీతోటి వాళ్ళకి పంచాయతీ. ఇది ప్లాట్లు ఇచ్చే పద్ధతి. ఆల్రెడీ హిందువులకు ఇచ్చిన ప్లాట్లు అవి తీసేసి ముస్లింలకు ఇస్తున్నారు. ఇది ఎక్కడి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇది?
6 मार्च को आरमूर मस्जिद रहमानिया कमेटी के जरिए एहतिमाम एक जलसा बउनवान अजमत कुरान व इस्लाह मुआशरे का इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आरमूर में 6 मार्च बाद नमाज इशा बउनवान अजमत साहबा व इस्लाह मुआशरे के उन्वान पर एक अजीम शान जलसा मुनाकिद होगा। इस जलसे के पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम देते हुए सदर काजी हाफिज अब्दुल मजीद ने बताया कि हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत व बेहतरीन आलम दीन मौलाना PM मुजम्मिल इमाम व खतीब मस्जिद उमर फारूक बेंगलुरु रियासत कर्नाटक से तशरीफ ला रहे हैं और वो 6 मार्च बाद नमाज इशा मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर में जलसे से खिताब करेंगे। इन्होंने तमाम उम्मत मुस्लिमीन से शिरकत करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आरमूर मौलाना कबीरुद्दीन मजहरी, अब्दुल रहीम, हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज मिसबा ने जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की। इसके अलावा बताया कि मदरसा अशरफुल बनात पैरकिट में 2 बजे दिन 4 बजे तक खवातीन के लिए मौलाना का खिताब होगा। अस्सलामु अलैकुम। सरजमीन आरमूर पर एक अज़ीमुश्शान जलसे आम बउनवान अज़मत कुरान व इस्लाह मुआशिरा बतारीख़ 6 मार्च बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा फ़ौरन बमक़ाम मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर आरमूर में ज़ेर निगरानी इंतज़ामी कमेटी मस्जिद रहमानिया के मुनाक़िद होने जा रहा है। इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब मज़ाहिरी इमाम व खतीब मस्जिद रहमानिया करेंगे। शहंशाह खिताबत हज़रत मौलाना PM मुजम्मिल साहब वाला जाही रशादी दामत बरकातहुम खतीब मस्जिद उमर फारूक बेंगलुरु कर्नाटक से तशरीफ़ ला रहे हैं। आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की जाती है कि आप अहबाब जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। मुकामी आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक़ ज़ाकिर साहब कासमी का भी बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए ख्वाहिश की जाती है मिन जानिब मस्जिद रहमानिया सदर साहब अब्दुल रहीम साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान हुसैन साहब, हाफिज़ मिसबाहुद्दीन साहब, हाफिज़ शेख अत्तर साहब, आप अहबाब से अपील करते हैं कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलाम। एलिजा एंटरप्राइजेस आरमूर का शानदार इफ्तिताही तकरीब में आरमूर के मुख्तलिफ कायदीन की शिरकत। आरमूर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राधिका के बाजू अलायंस इंटरप्राइजेस के शानदार इफ्तिताह आज बाद नमाज जुम्मा अंजाम पाया। इस मौके पर अलायंस इंटरप्राइजेस के मालिक मोहम्मद निहालुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस इफ्तिताही तकरीब में TRS सीनियर कायद उस्मान अली हजरमी, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक, सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, फरतुल्ला खान, मोहम्मद सलीम, अब्दुल मजीद साहब के अलावा मरकजी कमेटी शरीक मोतमिद हुसैन जाबरी और दीगर मौजूद थे। अल्लाह के घर ईदगाह जदीद को ईंट, सीमेंट, कंकर, रेत की तिजारत के लिए इस्तेमाल करने पर ईदगाह कमेटी की खामोशी पर सैयद खैसर ने बरहमी का इजहार किया। सैयद खैसर साबिक माउन कॉरपोरेटर ने ईदगाह जदीद के अराजी को डंपिंग यार्ड में तब्दील करने के बावजूद ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की खामोशी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ईदगाह जदीद जहां पर नमाज अदा की जाती है और ईदगाह के हाथे में वाक़ कब्रिस्तान में मैयतों की तदफीन अमल में लाई जाती है, इस अराजी को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। सैयद खैसर ने सवाल किया कि क्या ईदगाह के अराजी को मुरम, रेत, कंकर, ईंट की तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कल इन्होंने ईदगाह जदीद का दौरा किया। मुकामी लोगों ने बताया कि मैयत को तदफीन के लिए लाने पर गेट मुकफ्फल पाया जा रहा है। गेट की चाबी कॉन्ट्रैक्टर और दूसरे अफराद के पास जिनका ईदगाह से कोई ताल्लुक नहीं है, इनसे चाबी हासिल करनी पड़ रही है। सैयद खैसर ने कहा कि इन्होंने सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन और वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल साजिद से मुलाकात करते हुए ईदगाह के अराजी पर ओपन जिम कायम करने के सिलसिले में तवज्जो दिलाने पर वक्फ बोर्ड के अराजी पर ओपन जिम कायम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया, जबकि इसी अराजी को ईंट, सीमेंट, कंकर, रेत की तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह जायज है? सैयद खैसर ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से पुरजोर मुतालबा किया कि ईदगाह जदीद कमेटी को तहलील करते हुए नई कमेटी तश्कील दी जाए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कायम करदा ईदगाह कमेटी आज तक बरकरार है, जो उसूल के बरखिलाफ है। सैयद खैसर ने ईदगाह की वक्फ अराजी को तिजारत के लिए इस्तेमाल करने वाले अनासिर पर क्रिमिनल
क्रिमिनल केस दर्ज करने का मुतालबा किया है। इन्होंने ईदगाह अल्लाह का घर है जहां पर नमाज अदा की जाती है, जाती इस्तेमाल से इसके बेहुरमती हो रही है। सैयद कैसर ने कहा कि वो ईदगाह के अराजी को तिजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। ईदगाह कमेटी या वक्फ इंस्पेक्टर की खामोशी को इन्होंने माने खैज बताया है। कहा कि इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों को शिकायत हवाले करेंगे ताकि मौजूदा ईदगाह कमेटी को तहलील करते हुए नई कमेटी तश्कील दी जाए और वक्फ इंस्पेक्टर की खामोशी पर कार्रवाई की जाए। सैयद कैसर ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और MIM कारपोरेटर्स की खामोशी पर भी बरहमी का इजहार किया है। यहाँ पर हमने इस बात को इतला कर दी उन लोगों को जिसके गाड़ियाँ हैं, जो भी वो वहाँ पर डंप कर रहे हैं, उनको हमने बता दिया है, लेकिन वो लोग खाली नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहा खाली नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी बोलते सो ख़वातीन वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं लोग, तो यहाँ पर बोलते सो एक ओपन जिम भी रखा जाए ताकि बोलते सो वो लोग इस्तेमाल किया जाए उनको। तो उन्होंने कहा, अफजल साहब ने कहा कि हमको वक्फ बोर्ड से परमिशन नहीं है, और किसी ने कहा कि यहाँ पर मुफ्ती अकरम ने कहा कि यहाँ पर ईदगाह के अंदर आप ओपन जिम नहीं लगा सकते। मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं अफजल साहब से और यहाँ के ज़िम्मेदारान से पूछ रहा हूँ कि आप लोग इस अल्लाह के घर के अंदर बोलते सो आप लोग ओपन जिम नहीं लगा सकते, तो ये रेती, ईंट और आपके बोलते सो तमाम जो डंपिंग स्टोरेज के मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता, वो यहाँ पर लेके रोज़ाना जा रहे हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवारों की जीत यकीनी, मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के कायदीन की MLC कविता से मुलाकात व तायद का किया ऐलान। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में शहर तरक्की की राह पर गामज़न। शहर की तारीख में पहली बार अहमदी बाजार में हुकूमत के बजट से 200 मलियों पर मुश्तमिल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का क़याम का मंसूबा, कामों का होगा अनक़रीब इफ्तिताह। नागाराम में लैंड माफिया का खात्मा करते हुए गरीब अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। वह अहमदी बाजार की ताजिन के मसाइल के हल के लिए MP अरविंद की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात। रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना मुल्क का नंबर 1 स्टेट। MLC इंतख़ाबात के मद्देनज़र मुनक़िदा इजलास से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। निज़ाम कॉलोनी कसीर रिहायशी इलाके से गुजरने वाले सड़क पर बड़े गाड़ियों की पार्किंग व बसेस की आमदरफ्त के सबब एक मासूम व हादसे से दो चार अवाम बरहम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।